नमस्कार, खबरों में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज एनडीटीवी से कहा कि वे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। एनडीटीवी के ग्रुप एडिटर श्रीनिवासन जैन के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी में उनके चुनाव लड़ने पर विचार हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये नहीं मान सकते कि मैं मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हूं। हालांकि आज कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए जब उनसे सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, तब उन्होंने कहा कि आपको मेरे अलावा कोई और चेहरा दिख रहा है क्या। हालांकि एनडीटीवी से उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मजाक किया था। You are building on the ground, but the lack of a leadership structure or a face in Uttar Pradesh remains a challenge. I just saw that you had a press conference where you said, when they were asked, "Koi chehra kaun hai?" I was being a bit tongue in cheek. Okay, but you said that you are the chehra. No, well, I said, look, because I'm asked this question, every second question is the same question. Yes. Now, clearly, I am the General Secretary of Uttar Pradesh, and in most ways, between me and Ajay Lalluji, who's the Pradesh Adhyaksh, and Mona ji, who's the CLP leader, we are leading the effort in Uttar Pradesh. You say your face is on every poster. It is. So, but whether now officially we have to say that this is the face or that is the face, it's unlikely that we're going to do that. But you're saying it's safe to assume that you are the sort of no, it's not face safe. of no, you of the can't. Congress? You can't put words in my mouth. Okay. I'm not saying that it's safe to assume. I'm saying that I am the General Secretary of Uttar Pradesh. The responsibility for Uttar Pradesh is mine, and I'm dealing with it. Why aren't you fighting the elections then? Well, you don't know yet whether I am or not. So. Okay. Is that an open question? It's an open question for now. So you might fight the elections if it comes to it. I may well. Okay. Have you given any thought to where you might want to fight from, or? I've left this discussion for a little bit later. So when we do have the discussion, and if at all I decide to fight, I will let you know. That's interesting. Can we assume from that you are also, in a sense, positioned as the Congress's chief ministerial candidate in UP? No, I don't think you should make assumptions like that. I have clearly said that that is not the case. Okay. I have clearly said just now also to you. Of Yes. course, I did. I made a tongue-in-cheek remark at the press Indeed. conference, but no. Okay. I don't think it's fair to assume that. But at least we can say that you are considering fighting these elections. That's not. We wouldn't be wrong in saying that. No. And the discussion is on amongst us internally in the party in Uttar Pradesh. And when we come to some consensus about it, we'll let you know. Is there a possibility, as some have suggested, that you might be fighting against Yogi Adityanath? No, That's not on the cards. No. प्रियंका और राहुल गांधी ने आज यूपी चुनाव के लिए घोषणा पत्र भी जारी किया। इसमें 20 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया गया है, जिसमें 8 लाख नौकरियां महिलाओं को देने की बात कही गई है। साथ ही आज कांग्रेस ने साफ किया कि चुनाव के बाद गठबंधन से परहेज नहीं है, लेकिन फैसला हालात को देखकर लिया जाएगा। भर्ती विधान के नाम से जारी घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने यूपी के युवाओं और महिलाओं से रोजगार को लेकर बड़े वादे किए हैं। इनमें 20 लाख सरकारी नौकरियां, जिनमें 8 लाख महिलाओं के लिए, शिक्षकों के खाली पड़े 1.5 लाख पदों को भरना और 30 साल से कम के युवाओं को स्टार्टअप के लिए 5,000 करोड़ रुपए जैसे वादे शामिल हैं। लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस इन वादों को पूरा करने की हालत में आएगी, सरकार बना पाएगी। प्रियंका ने कहा, जरूरी हुआ तो गठबंधन भी करेंगे, लेकिन अपना एजेंडा ऊपर रखेंगे। नहीं, आपने पूछा कि हम चुनाव के बाद अगर किसी अन्य पार्टियों को समर्थन देकर सरकार में शामिल होना चाहेंगे, तो मेरा जवाब ये है कि जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी तब ये तय किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आई भी और हम किसी गठबंधन की सरकार में शामिल हों या कुछ ऐसा हम सपोर्ट दें, तो हम चाहेंगे कि जो हमने एजेंडा महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए यहाँ पे हमने जो आप सबको बताया है, जो हमारा एजेंडा है, वो हम पूरा कराएंगे। तो हम चाहेंगे कि वो एजेंडा पूरा हो। इस मौके पर एक सवाल के जवाब में प्रियंका गांधी वाड्रा ने
यूपी के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अपना चेहरा आगे कर दिया। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब? अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। राहुल गांधी ने मोदी और योगी सरकार पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया और युवाओं के साथ उत्तर प्रदेश में नई शुरुआत की बात की। यूपी की तरह बाकी चुनावी राज्यों में महिलाओं पर फोकस क्यों नहीं, इस सवाल पर राहुल ने कहा कि आइडिया यूपी का है। अगर कोई आइडिया स्टेट से निकल के आता है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, पर जनरली हम ये कभी नहीं कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में हमने ये किया है तो सब स्टेट्स को करना पड़ेगा। ये हमारा तरीका नहीं है। युवाओं और महिलाओं के मुद्दों को आगे रखकर उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बनाने की कांग्रेस की कोशिश। हालांकि 30 साल से जो संगठनात्मक कमजोरी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की रही है, उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने बूते बहुत अच्छा कर पाए, ये मुमकिन नहीं लग रहा। ये बात जरूर है कि कांग्रेस पार्टी ने आज इस मंच से साफ किया कि किसी सूरत हाल में अगर गठबंधन की संभावना बनती है तो कांग्रेस पार्टी उस पर सोचेगी। सीधे तौर पे गठबंधन की बात से इनकार नहीं किया गया है। दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात गोवा की। पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे ने बीजेपी छोड़ दी है। बीजेपी से उन्होंने पणजी सीट से टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वे अब पणजी से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। For some reason, I am not able to get the candidature of Panji constituency. It has been given to someone who has opportunistically come within the party in last 2 years. Due to these circumstances, I have no choice but to stand for the values my father believed in and go ahead and let people of Panjim decide my political fate. So, I like to announce that I will be contesting as an independent candidate from Panji constituency. सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता सोहित मिश्रा के पास। सोहित, पार्टी ने कुछ इनको टिकट भी ऑफर किया था, पर बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद ये इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, मनोहर पर्रिकर के बेटे हैं। ऐसे में क्या माना जाए कि एक बार चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी का रास्ता इनके लिए खुला हुआ है, या फिर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि पणजी से जो वहां पर जो स्थिति है उससे चुनाव जीतने का इनको पूरा भरोसा है? जी देखिए, अगर उत्पल पर्रिकर की आज की भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उनका यही कहना है कि पणजी की जनता मेरे साथ है, और पणजी की जनता ही नहीं, बीजेपी के भी कई लोग मेरे साथ हैं। और ये भी एक वजह है कि वो लगातार कहते आए हैं कि मुझे वहां से चुनाव लड़ने देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 2022 की बात नहीं है, जब बाई इलेक्शन हुए थे 2019 में, तब भी उन्होंने मांग की थी कि उन्हें यहाँ से टिकट दिया जाए, लेकिन उन्हें दिया नहीं गया। तो कहीं ना कहीं उत्पल पर्रिकर का तो यही मानना है कि लोग उनके साथ में, और इसलिए वो वहां से इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो बीजेपी की सरकार बनी थी, जिसमें कांग्रेस से भी कई लोग बीजेपी में आए थे और समर्थन किया था, उसकी एक वजह ये थी कि हर कोई चाहता था कि मनोहर पर्रिकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। और उत्पल पर्रिकर का यही कहना है कि जो उनके पिताजी के वैल्यूज थे, जिसकी बात वो बार बार आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर रहे थे, वही वैल्यूज वो लेकर चल रहे हैं, और इसलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ने का आज ऐलान किया। आम आदमी पार्टी ने पहले कहा था कि वो इन्हें टिकट देंगे। संजय राउत ने तो ये तक कह दिया था कि अगर वो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तो हम चाहेंगे कि जो बीजेपी को छोड़ के दूसरी पार्टियां हैं वो अपने कैंडिडेट वहां पर खड़े ना करें, और हम सभी चाहते हैं कि उत्पल पर्रिकर चुनाव जीतें। तो अब इसके आगे क्या कुछ होता है ये देखना अहम होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि टिकट के ऐलान के काफी दिन पहले ही मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की ओर से यह तय था कि वहां से बाबूश को ही टिकट दिया जाएगा। ऑफ द रिकॉर्ड हम गोवा के बड़े नेताओं से, जो उनके प्रभारी हैं, जो तय भी कर रहे हैं कि टिकट किसे दिया जाएगा या नहीं, उनसे भी जब पहले ही पूछा था तब भी उन्होंने कहा था कि बाबूश को ही टिकट मिलेगा। तो बीजेपी ने तो मन बना लिया था, लेकिन शायद उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि ये बीजेपी से इस्तीफा दे देंगे और इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ेंगे। तो अब आगे क्या कुछ होता है ये देखना अहम होगा। लेकिन आज के बाद जो संजय राउत पहले से कह रहे हैं कि बीजेपी को छोड़ सभी लोगों को एक साथ आना चाहिए,
क्या वो पणजी सीट पर देखने मिलेगा, ये भी देखना अहम होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका सोहित इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखते हैं कि आगे यहाँ पर क्या होता है और काफ़ी रोचक मुकाबला हो जाएगा। उधर उत्तराखंड की अगर बात करें तो मंत्री पद से बर्खास्तगी और बीजेपी से निकाले जाने के बाद उत्तराखंड के नेता हरक सिंह रावत को हाथ का साथ मिल गया है। आज वो फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो एक ही शर्त पर कांग्रेस में आए हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बने और बीजेपी की विदाई हो। ज्वाइनिंग किसने कराई? सभी पार्टी की पूरी लीडरशिप थी, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर, प्रभारी से लेकर, वेणुगोपाल से लेकर सभी हमारे पार्टी के नेताओं ने आज विधिवत रूप से कांग्रेस में परिवार में एक सिपाही के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में मुझे सम्मिलित कराया है, अनुकृति को सम्मिलित कराया है। और ये निश्चित रूप से मेरे लिए खुशी की बात है। मैंने कोई शर्त नहीं रखी, सिर्फ एक ही शर्त है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो। दिल्ली में आज ऐतिहासिक अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से हटाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में मिला दिया गया। 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों की याद में 26 जनवरी 1972 को इंदिरा गांधी ने ये लौ जलाई थी। वहीं राहुल गांधी ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान को नहीं समझ सकते। हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। ऐतिहासिक क्षण है जिसको देख रहे हैं